Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 4. We are going to start unit 4. Its title is Rashid Minhas. I'm going to tell you the SLO based lecture division for this unit in lecture 1. Under the title of grammar, we are going to learn about common and proper nouns. We'll cover page number 32. And the SLO will be to classify more nouns as common and proper nouns, names of people, pets, places, mountains, lakes, or rivers, etc. This is SLO for lecture 1. In lecture 2, we learn about simple present and simple past tense, page 32 of your book. And the SLO will be to identify and use of tenses previously learnt in speech and writing. Lecture 3, compound words, prefixes and suffixes, page number 32 and 33 of the book. And the SLO is to recognize specific part of words including common inflectional endings, compound words and affixes. Lecture 4, under pronunciation skills, we learn the use of the pronunciation of the, page number 31. And SLO is to identify and differentiate the use of the with words starting with consonants and vowel sounds. Lecture 5, we'll read and understand part of text, page number 28 and 29 of the book. And SLOs will be use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of text from pictures and title, recognize and locate some compound words from various text sources, for example, butterfly, football, homework, classroom, and whiteboard. Provide the missing letters in simple 2 or 3 syllable words. Lecture 6 will continue reading and understanding of the text, page number 28, 29 and 30 of the book. And SLO will cover to read silently for comprehension. In lecture 7, under the title of listening and speaking, we learn to express opinions, page number 34 of your book. And SLO will be to use appropriate expressions in conversation to express opinions. Lecture 8, under the title of writing, we learn about mind mapping, page number 34, and SLO is to use some strategies to gather ideas for writing, such as brainstorming and mind mapping. So this is the lecture division, my dear students, and now it's time to understand this lesson. Its title is Rashid Minhas and its theme is patriotism, national pride, showing patriotism through deeds. Yes, my dear students, what does patriotism mean? Patriotism का मतलब है हुब्बुल वतनी, जज्बाए हुब्बुल वतनी. बेटा ये बहुत नेचुरल बात है कि आपका जो कंट्री है जहाँ हम पैदा होते हैं वो हमारा होमलैंड होता है, हमारा मदरलैंड होता है, और उसके साथ हमारी एक नेचुरल एसोसिएशन होती है, उससे हमारी मोहब्बत होती है. देखिए इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते, पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ क्या है? सबसे पहले आप क्या कहते हैं? आई एम अ पाकिस्तानी. सो पाकिस्तान आपका जो होम लैंड है, आपका जो कंट्री है, वो आपकी पहचान है. तो फिर जो आपकी पहचान है उससे आपकी मोहब्बत इज़ वेरी नेचुरल. ठीक है, तो इस जज्बे को पैट्रियटिज्म कहते हैं, राइट? अब इसके इजहार के डिफरेंट लेवल्स होते हैं. हम मे बी वी जस्ट एक्सप्रेस इट बाय वर्ड्स, और हम इसको और भी तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें इसका इजहार बहुत शदीद होता है, ख़ास तौर पर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी में हम ऐसे ही एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कौन है? राशिद मिन्हास. इनका नाम क्या है? राशिद मिन्हास. और यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर, ये राशिद मिन्हास की पिक्चर है, और ये पिक्चर है निशाने हैदर की. तो राशिद मिन्हास ने इतना बहादुरी का काम किया अपने मुल्क के लिए, आउट ऑफ द श्योर लव फॉर द कंट्री, और अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के इजहार के तौर पर इतना
बड़ा काम किया कि इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से नवाजा गया। अब वो क्या काम था और कैसे इन्होंने किया वो हम इस स्टोरी में देखते हैं। सो इट्स ऑन पेज नंबर 29। क्या स्टोरी है? हीरो इज अ पर्सन दैट मेक्स अ नेशन प्राउड। यहाँ से स्टोरी का स्टार्ट होता है। हीरो वो नहीं होते जो हम मूवीज में देखते हैं बेटा, हीरो वो होता है जिस पे पूरा मुल्क फख्र करता है कि देखो इस पर्सन ने अपने कंट्री के लिए कितना बड़ा काम किया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड मैनी ब्रेव हीरोज़ इन इट्स हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब से पाकिस्तान बना है हमारे पास लिस्ट ऑफ हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया और पाकिस्तान बनने के बाद भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए अल्हम्दुलिल्लाह। वन ऑफ एम इज राशिद मिन्हास। उन नामों में से एक कौन है? राशिद मिन्हास। ही वॉज बोर्न ऑन February 17, 1951। 1951 की फरवरी की 17 डेट को वो पैदा हुए, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ली। ही हैड एक्सट्रीम पैशन एंड लव फॉर सर्विंग हिज कंट्री। बेटा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू योर एक्ट्स। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं, थ्रू योर एक्ट्स। और वो एक्ट क्या होते हैं? टू सर्व, खिदमत सर अंजाम देना, ठीक है। और राशिद मिन्हास ने कैसे सर्व किया? ड्यू टू हिज पैशन ही जॉइंड पाकिस्तान एयर फोर्सेस एट द एज ऑफ 17। सिर्फ 17 ईयर्स के थे, अ यंग बॉय, जस्ट अ 17 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। और क्या किया उन्होंने पाकिस्तान की एक आर्म्ड फोर्सेस पाक फिजाइया, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। ही वॉज पोस्टेड एट मसरूर एयरबेस एज अ फाइटर पायलट। ये भी उनका फर्स्ट रैंक था, फाइटर पायलट। 1971 में द ईयर ऑफ वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर चल रही थी। और अभी मतलब ये जब का इंसिडेंट है, अभी वॉर के हालात क्रिएट हुए थे, ठीक है। और क्या हुआ कि समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स ऐसा काम जो पहले नहीं हुआ, एक आम रूटीन से हट कर काम। और वो क्या काम था कि एक मॉर्निंग ऑन August 20, ये वो दिन था, ये तारीख थी 20 अगस्त को, राशिद मिन्हास वॉज अबाउट टू फ्लाई T-73। ये उनके जेट का नाम है, वो अपना जेट चलाने वाले थे। When he saw his instructor मतियूर रहमान signaling to stop, तो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे मतियूर रहमान, यानी अब देखिए वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो उनके साथ उनके एक सीनियर हैं, उनका नाम क्या है? मतियूर रहमान। मतियूर रहमान ने राशिद मिन्हास को इशारा किया, सिग्नल दिया कि रुको, टू स्टॉप। और राशिद मिन्हास स्टॉप द जेट। अब उनके सीनियर ने कहा तो उन्होंने जेट रोक लिया। एंड ही टोल्ड राशिद मिन्हास दैट ही वाज गोइंग टू ऑब्जर्व द फ्लाइट एज अ ट्रेनर। उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ बैठकर आपकी फ्लाइट को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज हिज ट्रिक। और ही जंप्ड इनटू द जेट एंड टुक द इंस्ट्रक्टर्स सीट। अब क्या किया कि राशिद मिन्हास का जेट है और मतियूर रहमान ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं। अब राशिद मिन्हास वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही न्यू दिस इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन। ये रूल के खिलाफ एक बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से हमें ये भी मैसेज मिलता है बेटा कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा तो इट मीन्स वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यही राशिद मिन्हास ने फ़ौरन से फील किया। और when the jet took off, राशिद मिन्हास realized it was heading towards India. वो अपने ओरिजिनल रास्ते पे नहीं जा रहा था, वो इंडिया की तरफ जा रहा था। तो राशिद मिन्हास ने क्या किया? इमीडिएटली, फौरी तौर पर ही इन्फॉर्म द PAF एयरबेस मसरूर अबाउट द हाईजैकिंग ऑफ हिज जेट। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है मेरा जेट हाईजैक हो गया। एंड हाईजैक का क्या मतलब है? अनऑथराइज कंट्रोल। एक ऐसा बंदा उस प्लेन को, किसी भी एयरक्राफ्ट को चला रहा है जो कि उसको चलाने का ऑथराइज नहीं है। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिला कि हमें फ़ौरन जो रेलिवेंट लोग हैं जो मामले में हमारी हेल्प कर सकते हैं उनको अपने साथ इंफॉर्मेशन में लेना चाहिए, लूप में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर कोई मसला क्रिएट हो रहा है। द इंस्ट्रक्टर फोर्स्ड हिम टू टर्न द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। अब जब इंस्ट्रक्टर ने देखा कि राशिद मिन्हास ने भांप लिया तो उसने फोर्स किया, चलो इंडिया की तरफ चलो। अब राशिद मिन्हास, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ 17 साल का एक यंग लड़का, उनको क्या करना चाहिए था। और देखिए उन्होंने क्या किया।
At that time, Rashid Minhas struggles to overpower his instructor physically to stop from going towards India. Physically का क्या मतलब है? उन्होंने अपनी जिस्मानी तौर पर पूरी कोशिश की कि वो जेट को रोकें, इंडिया में ना जाने दें, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के बहुत इम्पॉर्टेंट राज थे उनके पास. Ultimately, the jet was 32 miles away from the border. अब वो कोशिश तो कर रहे थे लेकिन जेट रुका नहीं, और सिर्फ 32 माइल्स यानी 32 माइल के फासले पर अब उनको इंडिया का बॉर्डर नजर आ रहा था. It came down due to the struggle between them. अब वो कोशिश कर रहे हैं तो जेट नीचे की तरफ आ गया. It crashed and Rashid Minhas succeeded in his effort to defeat enemies की. जहाज़ जो है वो ज़मीन में लग गया, उन्होंने उसको बॉर्डर पर नहीं जाने दिया और उसको क्रैश कर दिया, और जो रास वो इंडिया में ले जाना चाह रहे थे, वो स्कीम जो है उनकी, दुश्मन की पूरा प्लान नाकाम बना दिया. और इस पूरी एफर्ट में क्या हुआ? He gave away his life for his motherland. अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर जहाज ज़मीन में लगेगा तो what is going to happen with me. सो बेटा ये है वो जज्बा जिसको कहते हैं पैट्रियटिज्म. यहाँ पर आपका मदरलैंड, आपका मुल्क, आपके मुल्क की इज्जत, आपके मुल्क का नाम आपकी अपनी ज़ात से बुलंद होता है. For this act of bravery and courage, he was awarded the highest military award, the Nishan-e-Haidar. आफ्टर embracing martyrdom, इस शहादत के बाद, क्योंकि वो इस पूरे मार्के में शहीद हो गए, और इस शहादत के बाद उनको निशान हैदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी, एजाज़ नवाजा गया. He was also the youngest one to receive the award. The Pakistani nation is proud of him. He was youngest, सबसे छोटी उम्र में जिनको निशान हैदर मिला वो राशिद मिन्हास थे. तो यहाँ से हमें एक ये भी सबक मिलता है कि मुल्क के लिए काम करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए. एज डज नॉट मैटर, राइट? एंड वी ऑल पाकिस्तानी आर प्राउड ऑफ हिम कि हमारे एक इतने यंग नौजवान ने इतना बड़ा काम किया. और बेटा एक्चुअली अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं जब हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, और इस चीज़ का हमें मैसेज मिलता है कुरान से भी. ये देखें सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, There are men among the believers who were true to their covenant with God. Some of them fulfilled and passed away, and some of them still wait, and they have not changed in the least. ये खूबसूरत वर्स ग़ज़वा अहज़ाब की है. ग़ज़वा अहज़ाब मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल टाइम था, और क्या हुआ कि अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को निभाते हुए बहुत से मुसलमान शहीद हुए. तो वो उनकी शहादत को अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि अल्लाह ने उनको कुरान में मेंशन कर दिया कि सम ऑफ देम passed away, वो इस दुनिया से चले गए अल्लाह के साथ अपना वादा निभाते हुए. तो बात ये है कि जाना तो हमने सब ने है इस दुनिया से, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह से जाते हैं. तो बेटा हर लम्हा इम्पॉर्टेंट है, हर लम्हे अल्लाह ताला को याद रखें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें. आप हमारा कल हैं, मुल्क के लिए बड़े बड़े काम आपने करने हैं, और उसका एक ही तरीका है अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करें, और एक अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी बने, राइट? तो इंशाल्लाह कल हम इसका लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे. आज इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है. दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो आई कम अगैन विद वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. टिल द टाइम कीप लर्निंग, और जो सीखते हैं बेटा उसको अपने अमल में लाइए. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.